خیال سے ہم نے اس آیت تک پڑھ لیا تھا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ کیا تھا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. پہلے جو آج میں نے تلاوت کی ہے، اس سے پہلی آیت میں تھا کہ اگر تم اس کلام میں شک رکھتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے تو اس جیسی کوئی صورت اس کی مثال بنا کے دکھاؤ، اور اپنے شہداء کو بھی جو تمہارے سرپرست ہیں ان کو بلا لو، اللہ کے سوا جو بھی تم نے سرپرست بنا رکھے ہیں ان کو بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اس کا جواب یہ ہے، خود ہی قرآن کریم یہ جواب دیتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. ان کا مطلب ہے اگر، فا کا مطلب ہے بس اگر تم نہ کر سکو. تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکو گے. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لم جب مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اسے ماضی بنا دیتا ہے اور ماضی منفی بنا دیتا ہے، نفی میں تبدیل کر دیتا ہے. تو لا تفعلون کا مطلب ہے تم نہیں کرو گے.
اور لم تفعلو کا مطلب ہے تم نہیں کر سکے، یا شرط کے ساتھ آئے تو کر سکو اس کا ترجمہ بنتا ہے، اس سے سبجنکٹیو کہا جاتا ہے۔ پھر فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، تو ان نے کر سکے کے معنوں کو پھر تبدیل کر دیا اور کر سکو میں بدل دیا۔ یہ قانون ہے کہ جب شرط آ جائے تو وہ جملہ شرطیہ بن کر اسے سبجنکٹیو ہو جاتا ہے، منسوب ہو جاتی ہے چیز۔ تو تفعلون کا نون اس لیے گر گیا کہ لم نے اس پر عمل کیا اور اس کا نون ختم ہو گیا، اور آخری نون جو ہوتا ہے افعال ان کا گردانوں کا، یہ اپنی ذات میں لفظ کا حصہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ جب بھی کوئی اور لفظ، کوئی طاقتور وجہ اس پر عمل کرے تو یہ گر جاتا ہے۔ بس یہ مختصر گرامر ہے، زیادہ نہیں بتا سکتا کیونکہ پھر جن کو گرامر نہیں آتی ان کا دماغ اجڑ جائے گا۔ مختصراً پھر بتاتا ہوں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لم تفعلوا کا مطلب ہے نہیں کر سکے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا مطلب ہے إِن لَمْ تَفْعَلُوا کا اگر وہ ایسا نہ کر سکیں، یا تم نہ کر سکو، یا مخاطب ہے معاف کرنا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، دماغ میں یفعلون کی گردان ہے، اس لیے میں غائب میں ترجمہ کر رہا تھا۔ اگر یفعلوا ہوتا تو پھر یہ ترجمہ ہوتا إِن لَمْ يَفْعَلُوا، اگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ مگر جو تے کے دو اوپر نقطے پڑے ہوئے ہیں یہ مخاطب کے ہیں۔ مضارع میں جب تے داخل ہو اس طرح تو مخاطب میں بھی بدل دیتی ہے اور بعض دفعہ تانیث کی علامت بھی بنتی ہے، مگر وہ الگ موقع آئے گا تو پھر سمجھاؤں گا کہ کہاں تانیث بنتی ہے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہم بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ اب اس نے بھی، لن نے بھی تفعلون کا نون گرا دیا، لیکن مستقبل میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب مضارعہ حال اور مستقبل کا مشترک مضارعہ نہیں رہا، بلکہ اب یہ مضمون خالصتاً مستقبل میں تبدیل ہو گیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حروف کے اثرات جو ہیں ان کو اگر آپ شروع میں آہستہ آہستہ پڑھ کر ذہن نشین کر لیں گے تو آئندہ پھر فائدہ ہوگا، از خود ذہن میں ان کا صحیح ترجمہ ابھرا کرے گا، ورنہ ہر دفعہ ترجمہ دیکھ کر پڑھنا بہت مشکل ہے اور براہ راست انسان کلام الہی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو اس لیے یہ جو حصہ ہے میں جان کر اس پر آہستہ چل رہا ہوں تاکہ ان دو حروف کا عمل دکھا دوں، اور ایک ماضی میں عمل کر رہا ہے، ایک مستقبل میں، دونوں منفی کے معنی رکھتے ہیں، دونوں مثبت کو نفی میں تبدیل کر رہے ہیں۔ لم تفعلوا کا مطلب ہے تم نہ کر سکے، ان لم تفعلوا کا مطلب ہے اگر تم نہ کر سکو۔ سمجھ گئے ہیں اچھی طرح؟ اور تفعلون کا مطلب ہے تم کر سکتے ہو، کر رہے ہو یا کرو گے۔ لن تفعلوا نے بھی نون گرا دیا تفعلون کا، اور جو مضارعہ تھا جو حال اور مستقبل دونوں پہ مشترک ہوتا ہے اس کو صرف مستقبل میں تبدیل کر دیا۔ اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، ناممکن ہے کہ تم ایسا کر سکو۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، تو پھر آگ سے ڈرو، اس آگ سے ڈرو، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن پتھر انسان بھی ہیں، والحجارہ اور پتھر بھی۔ اعدت للکافرین، یہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ إِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ہرگز ایسا نہ کر سکو گے، فَاتَّقُوا، پس بچو، النَّارَ، آگ سے۔ نار مفعول ہے اتقوا کا،
बचो आग से, और मफूल पे नस्ब आती है, और नस्बी हालत ही मफूलियत का नाम है। एक ही चीज़ के दो मुख्तलिफ नाम बन जाते हैं। मफूलियत के मानों को नस्ब से अदा किया जाता है, और नस्ब को अक्सर औकात ज़बर से अदा किया जाता है। तो ज़बर और नस्ब का फ़र्क भी आप खूब अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। जब आप देखते हैं ज़बर आई हुई है इस पर, फत्तकुन नारा, रे पर ज़बर है, तो ये जो ज़बर है ये किसी चीज़ की इलामत नहीं है, बराह रास्त नस्ब है इलामत। और नस्ब को बाज़ जगह ज़बर से ज़ाहिर किया जाता है, बाज़ जगह अलिफ से, बाज़ जगह ये से, और बाज़ जगह ज़ेर से भी ज़ाहिर किया जाता है। ये सारे मौक़े अलग अलग जब आएंगे तो आपको मौके पे बताता रहूँगा। इतना याद रखें कि ज़बर जो आप अक्सर अरबी में पढ़ती हैं वो अक्सर औक़ात मफ़ूल होने की इलामत होती है, यानी नस्ब की इलामत होती है। बस इलामत अरबी में नस्ब को कहा जाता है, ज़बर को नहीं कहा जाता, क्योंकि ज़बर हर जगह नस्बी हालत की नुमाइंदगी नहीं करती। कभी ये करती है, कभी ज़ेर करती है, कभी ज़बर करती है, तो कभी अलिफ कर देता है। बस इसलिए नस्ब याद रखना चाहिए, मफूली हालत का नाम नस्ब है, और नस्ब बसा औक़ात ज़बर के ज़रिए ज़ाहिर की जाती है। बस नारा में यहाँ रे पे ज़बर नस्बी हालत को ज़ाहिर करने के लिए आई। और क्यों नस्बी हालत है? मफूल नस्ब होता है, जिस पर अमल हो वो मंसूब होता है, जो अमल करने वाला हो वो फ़ाइल है, और फ़ाइली हालत को रफ़ा कहते हैं, वो बुलंद है उससे, और मफूली हालत नीचे है। तो पेश बसा औक़ात फ़ाइली हालत की इलामत बन जाती है, और ज़बर मफूली हालत की। ये इस कसरत से कुरान करीम में इस्तेमाल होता है कि खा ठहर ठहर कर समझना पड़े। एक दफ़ा खूब अच्छी तरह इस बात को ज़हन नशीन कर लें, ताकि ये बिल्कुल जहन में रवां हो जाए और सोचना ना पड़े, बल्कि अज खुद ही जहन में ये बातें उभर जाएं कि इस वक्त इस चीज़ की क्या हालत है। हालत से मजमून से ही समझ आएगा। अब अगर मैं कहूँ ज़ैद ने बकर को मारा, तो कौन रफ़ा है और कौन मंसूब है, कौन मरफू है, कौन रफ़ी हालत में है, कौन नस्बी हालत में है, बताएं। ज़ैद ने बकर को मारा। हाँ जी, अब मौलवी साहब तुझे ना दोस्तों सारी वो जाना ही पड़े है, ऐसा तो ना कोई बेचारे नाल जिनको अरबी नहीं आती, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, अपने उस्ताद मौलवी मोहम्मद सदीक साहब से और अपने क्लास फेलो मौलवी सदीक साहब से नहीं पूछ रहा क्या दो सदीक बैठे हुए हैं, दोनों सच्चे हैं। एक मेरे उस्ताद जामिया के हज़रत मौलवी मोहम्मद सदीक साहब, हज़रत मौलवी मोहम्मद शरीफ साहब मरहूम के छोटे भाई हैं, और एक मौलवी मोहम्मद सदीक साहब मेरे क्लास फेलो हैं, और एक इमाम सदीक साहब भी हुआ करते थे, वो जर्मनी पहुंचे हुए हैं आजकल। अच्छा आप बताएं, आपने नहीं बोलना, मौलवी साहब तुसी भी नहीं, जिनको अरबी नहीं आती वो क्या समझे हैं अब तक मुझसे, वो बताएं। ख़वातीन अगर समझ गई हैं तो बताएं, वो भी बेशक बोल सकती हैं। हाँ हाँ बताएं क्या है। ज़ैद ने बकर को मारा, रफ़ा की हालत में कौन है और नसब की हालत में कौन है? बकर। और ज़ैद को बकर ने मारा, पहले मैंने कहा था ज़ैद ने बकर को मारा, अब मैंने कहा ज़ैद को बकर ने मारा। तो पहले वाक़या होना कोई दलील नहीं है इस बात की कि कोई रफ़ा में आ गया है। इलामते हैं, उर्दू में आपको पता है खा ग्रामर आए ना आए, ने जो है ये रफ़ा की इलामत है और को नसब की इलामत है, इसलिए जिस पर को आएगा उसको मंसूब कर देगा।
जिस पर ने आएगा उसको रफा बना देगा। तो जैद ने, जैद के साथ ने लगा हुआ है ना, जैद रफा में आगे फाइल है। और बकर को जो है ये चूंकि मंसूब नस्ब की इलामत है, इसने बकर को मंसूब कर दिया। अब दूसरी दफा मैंने कहा जैद को बकर ने मारा, उसने जवाबी हमला किया ना, जगह नहीं बदली, उसी तरफ खड़ा रहा और फिर मारा है, लेकिन ने और को बदल गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अरबी में इलामतें होती हैं, इलामतों से पहचाना जाता है, पहले और बाद में आने की बहस नहीं है। बाज़ दफ़ा मफूल को पहले ले आते हैं और बाज़ दफ़ा अक्सर फाइल को पहले ले आते हैं। जब मफूल को पहले लाते हैं तो क्यों लाते हैं? रोजमर्रा जो जिनको जुबान का मलिका है वो जानते हैं जवाब, लेकिन समझ नहीं आ रही क्या कहें। जब मसलन ये कहना हो बकर को जैद ने मारा, तो मुराद है किसी और को नहीं मारा, बकर को मारा है। और अगर कहा जाए जैद ने बकर को मारा, तो फाइल पर जोर है कि जैद था जिसने मारा है। तो आगे पीछे करने से मजमूनों में इजाफे हो जाते हैं या तब्दीली पैदा हो जाती है, मगर इलामतें वो साथ चिपट जाती हैं, वो मजमून नहीं बिगड़ने देती। इसलिए नसब और रफा की इलामतें हैं, वो रफ्ता रफ्ता आप पहचानने लगेंगी तो आपके लिए कुरान करीम को समझना आसान हो जाएगा। फिर मुहावरतन जब तिलावत करेंगी खुद ब खुद माने भी साथ ज़ाहिर होने शुरू हो जाएंगे। फ़इन लम तफ़लू, अगर तुम ना कर सको ऐसा, वलन तफ़लू, और हरगिज ऐसा ना कर सकोगे, फत्तकू, पस डरो, अन्नारा, आग से। हम जिसको से कह रहे हैं अब अरबी में ये मफूलियत के जरिए ज़ाहिर हो जाती है, से ज़ाहिर अलग नहीं बयान करनी पड़ती। उर्दू में आग बचो नहीं कह सकते हम, अरबी में आग बचो लिखा हुआ है, समझे हैं? इसलिए उर्दू में जब हम से बचो कहते हैं तो वैसे उर्दू में ये डेटिव कहलाता है, अंग्रेजी ग्रामर के लिहाज से इसको डेटिव कहते हैं, लेकिन वाकया ये है कि है मफूल असल में। अरबी में मफूल जो बरह रास्त आता है वो हर दफा उर्दू में बरह रास्त नहीं आता। आपने मैंने कहा था ना ज़रबा ज़ैदुन बकरन, तो बीच में को ने नहीं आया था। तो जो हम ने को से वगैरह इन हरूफ से बयान करते हैं, अरबी जुबान में इलामतों से वो चीज़ बयान हो जाती है। बस फत्तकुन नार, आग से बचो। कौन सी आग है? वकूदोहा, उसका हा मैंने है उस, वकूद कहते हैं ईंधन को, वकूदोहा उसका ईंधन है, उसकी तारीफ हो रही है आग की। अल्लज़ी का मतलब है जो मर्द या जो मुज़क्किर, अल्लती का मतलब है जो मुअन्नस। आग अरबी में मुअन्नस है, इसलिए लफ्ज़ अल्लती इस्तेमाल हुआ है। फत्तकुन नारा, बस आग से बचो, अल्लती यानी वो आग। उर्दू में भी हम आग को मुअन्नस ही पढ़ते हैं ना, अरबी में भी मुअन्नस पढ़ते हैं। आग जलाई, आग जलाया तो नहीं कहते, सिवाय के पठान हो वो आग जलाया भी कह देते हैं, मगर हम जलाई कहते हैं, अरब भी जलाई कहते हैं। फत्तकुन नार अल्लती, उस आग से बचो, वकूदुहा जिसका ईंधन। वकूदुहा, वकूद भी रफा हालत है, मंसूब हो रहा है किसी तरफ हा की तरफ, तो उसका ईंधन क्या है? अन्नासो वल हिजारा, लोग भी हैं और पत्थर भी। अब अरबों में पता नहीं कोयले की आग, पत्थर की आग हुआ करती थी कि नहीं, मगर जहां तक मैंने मुतालिया किया, मैंने एक दफा शौक से पता किया था, कोई पत्थर की आग का कोई सवाल नहीं था उस जमाने में। और आंखें बंद करके तर्जमा लोग पढ़ते चले जाते हैं, सोचते नहीं कि इसमें एक निशान है। सबसे ज्यादा खतरनाक आग जो है गर्मी के लिहाज से,
वो पत्थर की आग होती है। लकड़ी का कोयला इतनी आग नहीं पैदा कर सकता, तेल इतनी गर्मी पैदा नहीं कर सकता, मगर पत्थर की आग जब पूरी तरह भड़क जाए तो सबसे ज्यादा गर्म वो आग होती है। इसलिए नासो वल हिजारा में एक तो इशारतन बाद के जमाने के लिए पैगाम मिल गया कि बहुत गर्म आग होगी, फिर उसमें पत्थर जल रहे होंगे। दूसरा ये कि पत्थर दिल मुराद है। नास से मुराद आम लोग हैं, आम गुनाहगार भी होंगे और वो लोग भी जिनके दिल पत्थर हो चुके थे। बाद में इसकी तशरीह फरमा दी कि हैं दोनों ही इंसान। चुनाचे फरमाया वो इद्दत लिल काफिरीन, पत्थर तो काफिर नहीं हुआ करते, इसलिए पत्थर भी होंगे इंसान भी होंगे। मुराद ये है, नास से मुराद आमतुन नास और पत्थर से मुराद उनके सख्त दिल सरदार जो पूरी तरह पत्थर दिल हो चुके हैं, बेरहम और संगलाख हो गए हैं, उनमें कोई नेकी का बीज नहीं उग सकता। और हैं ये सारे इंसान ही, क्योंकि फरमाया ओइद्दत लिल काफिरीन। ओइद्दा का मतलब है तैयार किया गया, ओइद्दत का मतलब है तैयार की गई, ले का मतलब है लिए, आपको याद हो चुका होगा अब तक। और अल काफिरीन जो इनकार करने वाले हैं। ये ले और काफिरीन की बहस बाद में करेंगे, आज की ग्रामर काफी हो गई है वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। उद्दत लिल काफिरीन जो तैयार की गई है काफिरों के लिए, वह बशरिल लजीना आमनू व अमिलुस सालिहात है। बशर खुशखबरी दे दे, अल्लजीना आमनू उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, वह अमिलुस सालिहात और नेक अमाल बजा लाए हैं। कुरान करीम ने ईमान के साथ नेक अमाल का जिक्र बांध दिया है हमेशा, क्योंकि खाली ईमान जिसके बाद नेक अमाल पैदा न हो फायदा नहीं देता। वजह यह है कि वो सच्चा नहीं होता। अगर ईमान सच्चा हो तो नेक अमाल उसका तब भी नतीजा है। दुनिया को ईमान नजर नहीं आता, नेक अमाल नजर आ जाते हैं। तो इसलिए नेक अमाल की शर्त साथ बांधी हुई है हर जगह। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने इस मज़मून को खूब खोला है। फरमाते हैं अगर तुम्हें यकीन हो कि इस बिल में सांप बैठा हुआ है और मुंह तुम्हारी तरफ है बाहर की तरफ, तो उसमें उंगली नहीं डालोगे। ये यकीन का हाल है। तो ईमान के साथ अगर ये पता हो कि ये चीज़ फ़ायदा बख्श है, खुदा ने फरमाया है इसलिए नहीं, बल्कि पूरा यकीन है कि हाँ फ़ायदा वाली है, तो अपनी फ़ायदा वाली चीज़ कौन छोड़ता है फिर। और अगर पूरा यकीन हो कि कोई चीज़ नुकसान रसा है तो फिर उससे बचता है। तो इसलिए ईमान के साथ अमल साले का जिक्र उसकी इलामत के तौर पर, उसके सच्चा होने की निशानी के तौर पर बयान किया जाता है। बशरिल लज़ीना आमनू उन लोगों को खुशखबरी दे दे जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहात और उन्होंने नेक काम सर अंजाम दिए, नेक अमाल बजा लाए। अन्ना लहुम, अन्ना का मतलब है कि यकीनन, इन्ना का मतलब है यकीनन, और अन्ना का मतलब है कि यकीनन, क्योंकि इन्ना फिक्रे के शुरू में आता है। जैसे हम कहते हैं चूंकि उसने ये काम किया इसलिए उसको सजा मिली, और उसे ये सजा मिली क्योंकि उसने ये काम किया। बीच में क्योंकि कहते हैं तो क्योंकि में किह का मजमून दाखिल हो जाता है। इसी तरह इन्ना और अन्ना का फर्क है। आगाज में इन्ना कहते हैं, यकीनन ये बात यूं है, और बीच में है अगर कहना हो तो फिर मतलब है कि यकीनन बन जाता है। यहां ये मजमून बनेगा कहां चला गया वो, बस आमनू वामिलुस सालिहात अन्ना लहुम, के उनके लिए, यकीनन लहुम का मतलब है उनके लिए, अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी, उन्हें खुशखबरी दे दे कि यकीनन उनके लिए जन्नात हैं। जन्नात बागात को कहते हैं और जन्ना की जमा है जन्नात।
اور چونکہ جنت کا تصور ہر جگہ لفظ جنہ سے بیان ہوا ہے جو ہمارا مذہبی تصور ہے، اس لیے باغات کی بجائے اسے جنت کا بھی کہا جاتا ہے۔ جنات کا ترجمہ جنتیں کہہ دیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، باغات بھی کر سکتے ہیں۔ لہو ان لہم جنات، اس لیے کہ ان کے لیے ہیں جنات۔ اب آپ کو میں نے ایک دفعہ بتایا تھا کہ منصوب حالت بعض دفعہ زیر سے بھی ظاہر ہو جاتی ہے، بتایا تھا نا ابھی، یاد ہے مبارک بات پانی صاحب؟ یہاں کہاں ظاہر ہوئی ہے زیر سے؟ ان لہم جنات، کیوں یہ اس پہ کیوں زیر آئی ہے؟ یہ منصوب کیوں ہو گیا جنات میں بیٹھے بٹھائے؟ انا اور انا یہ دو لفظ ہیں جو اپنے اسم کو منصوب کر دیتے ہیں۔ تو انا کے بعد جو اسم ہے، اصل لہم تو اسم نہیں ہے نا، ان کے لیے جو اصل ہے وہ جنات ہے۔ تو جنات یہ منصوب ہے انا کا، مفعول ہونے کے لحاظ سے نہیں، بلکہ انا نصب دے دیتا ہے اپنے اسم کو، ایک اور قانون ہے، مگر علامت زیر سے ظاہر ہوئی ہے، زبر سے ظاہر نہیں ہوئی، سمجھ گئے ہیں؟ انا جنات لہم یہ ہے اصل میں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، تجری میں نے بہتی ہیں، جاری ہو اردو میں نہیں کہتے جاری، جاری و ساری، تو جاری بعض دفعہ فعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، بعض دفعہ ایک دائمی حالت کے بیان کے لیے اسم بن جاتا ہے، تو جاری و ساری ان معنوں میں آتا ہے۔ تو ان کے نیچے بہتی ہیں، من تحتہا ان کے نیچے سے، الانہار نہریں، کلما رزقو، کلّا کا مطلب ہوتا ہے کل، ما میں نے جب کبھی بھی مراد ہے، کلما ہمیشہ جب، تو کل اردو میں بھی ہمیشہ کے لیے ہر چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کلما کا مطلب یہ بھی کر سکتے ہیں ہمیشہ جب ہی ہوتا ہے، یا محاورے میں کہا جاتا ہے جب کبھی بھی، کلما رزقو جب کبھی بھی انہیں رزق دیا جاتا ہے، رزقو رزقو ان دونوں میں فرق ہے، رزقا کا مطلب ہے رزق دیا، روزقا کا مطلب ہے رزق دیا گیا، مفعول بن جاتا ہے یعنی مجہول، رزقو انہوں نے رزق دیا، رزقا ایک آدمی نے رزق دیا، رزقو ان سب نے رزق دیا یا زیادہ نے رزق دیا، رزقو وہ رزق دیے گئے۔ اعدہ کا مطلب کیا ہے پتہ کسی کو؟ غیر جامعہ پاس شدہ کو، اعدہ تیار کیا، اعدہ تیار کیا گیا، تو یہ طرز پہچان لیں، جو معروف حالت ہے مجہول میں بدلتی ہے تو اس طرح عربی میں بدلتی ہے۔ عرفہ عرفو پہچانا گیا، اعدہ اعدہ تیار کیا گیا، رزقا رزقا رزق دیا گیا۔ تو پہلے اعدت جو تھا وہ اگر عادت ہوتا تو اس عورت نے تیار کیا، یہ ترجمہ بنتا، اور عدت کا مطلب ہے وہ مؤنث تیار کی گئی ہے یعنی آگ۔ تو اب یہاں پہنچ کے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ لگ گئی کہ جو طرز جو حرکت کی تبدیلیاں ہیں وہ معنی بدلتی ہیں، اور خاص سانچے ہیں عربی میں، ان سانچوں کو گردان کہتے ہیں۔ سانچے میں ڈھل کر ایک ہی لفظ مختلف شکلیں بناتا جاتا ہے اور مختلف معنی بناتا جاتا ہے، تو عربی کے سانچوں کی پہچان بہت ضروری ہے۔ اور عام طور پر جو روزمرہ کے استعمال کے سانچے ہیں وہ سیدھا ماضی سیدھا مضارعہ، اور یہ آپ کو رفتہ رفتہ میں کوشش کروں گا کہ آپ پہچاننا شروع کر دیں۔
तो रज़क़ा माजी है, रिज्क दिया, रुज़क़ा रिज्क दिया गया, रज़क़ू उन्होंने रिज्क दिया, रुज़क़ू वो रिज्क दिए गए। कुल्लमा रुज़क़ू जब कभी भी वो रिज्क दिए गए या उन्हें रिज्क दिया जाता है, दोनों तरह तर्जुमा हो सकता है, क्योंकि कुल्लमा माजी को मुजारिया में भी बदल देता है। पहले हमने मुजारिया के साथ किया थी ना हरकत ये कि लफ्ज़ ऐसे लाए थे जो कभी उसको पीछे ले गया, कभी और आगे धकेल दिया। अब ऐसे अल्फाज भी हैं अरबी में जो उसका बदला उतारते हैं, वो माजी को फिर मुजारे में बदलते हैं। इसकी एक मिसाल मैंने पहले भी दी थी आपके सामने, क्या थी, किसी को याद है? ख्वातीन ने लगता था बड़े गौर से सुना हुआ, भूल गई हैं। इज़ा का बताया था, लफ्ज़ इज़ा जब माजी पर आए तो उसे मुस्तकबिल में बदल देता है। इज़ा जा नस्रुल्लाह है, जब आई नहीं बल्कि जब आएगी। जा का मतलब है आई, इज़ा जा नस्रुल्लाह है, जब अल्लाह की नुसरत आएगी। तो बाज़ हुरूफ हैं वो मुजारिया को माजी में बदलते हैं, बाज़ माजी को मुजारिया में बदलते हैं, और उनकी वजह से अरबी में वो उकसानियत नहीं पैदा होती, एक ही तरह से उकताहट नहीं पैदा होती, तनव्वुर पैदा हो जाता है और ज़्यादा शौकत आ जाती है, कलाम में ताकत आ जाती है। तो कुरान करीम ने इसको कसरत से इस्तेमाल किया है, ऐसे हुरूफ को जो माजी को मुस्तकबिल में और ऐसे को जो मुस्तकबिल को माजी में या मुस्तकबिल बईद में बदलते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा, जब भी उन्हें रिज़्क दिया जाता है या दिया जाएगा, मिन्हा उससे, किससे, पता किससे? हाँ, जन्नात से, तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, जिनके नीचे नहरें बहती हैं, उन जन्नतों में से कुल्लमा रुज़िक़ू जब भी वो रिज़्क दिए जाएंगे, मिन्हा उन जन्नतों से, मिन समरातिन फलों में से कुछ। यानी जन्नत ऐसे बागात नहीं हैं कि सिर्फ कीकर ही लगे हुए, उस पर फलदार बागात हैं, और उन फलों में से जब भी उन्हें कोई रिज़्क दिया जाएगा, कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना, वो कहेंगे, ये जो है ना कुल्लमा सारा अगले हर माजी पे असर अंदाज हो रहा है, यकसां तर्जुमा करना पड़ेगा। दिया जाता है करेंगे तो यूं करेंगे, वो कहते हैं, जब भी उन्हें रिज़्क दिया जाता है वो ये कहते हैं, जब भी रिज़्क दिया जाएगा वो ये कहेंगे। तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाना आपका काम है। जहाँ एक तर्जुमा शुरू करें तो उस लफ्ज़ के ताबे फिर बाकी सारे तर्जुमे उससे मिलते जुलते करें। तो हमने ये किया है, कुल्लमा रुज़िक़ू मिन्हा मिन समरतिन, समरा का मतलब है फल, समर फल को नहीं कहते, समरतिन किसी फल, ये नकरा है, तो किसी फल उनमें से कोई सा फल उनको दिया जाएगा या दिया जाता है। कालू हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना, वो ये कहेंगे या कहते हैं, हाज़ल लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल, ये तो हमें पहले भी दिया गया था, रुज़िक़ना मिन क़ब्ल। व उतू बिही मुतशाबिहा, हालांकि उनके पास इससे मिलता जुलता लाया गया था, उन्हें दिया गया था इससे मिलता जुलता। मुतशाबिह शुबह वाला, जिसमें एक चीज दूसरे से मिलती जुलती हो। वलहुम फीहा अज़वाजुम मुताहरतुन वहुम फीहा खालिदून, और उनके लिए उनमें जोड़े होंगे पाक किए गए। यहाँ आमतौर पर मौलवी बीवियां कर देते हैं तर्जुमा, वो सिर्फ मौलवी जन्नत में जाएंगे और बीवियां तो उनकी खातिर भेजी जाएंगी, बिल्कुल झूठ है। अज़वाज से मुराद जोड़े जो मर्द हों या औरतें हों, तो उनको उनके मुनासिब हाल जोड़े दिए जाएंगे। मुताहरतन
ایسے جوڑے جنہیں پاک بنایا گیا ہوگا ان کے لیے. وہم فیہا خالدون، اور وہ ہاں یعنی اس جنت میں یا ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ، یقیناً اللہ. اللہ ہو کیوں نہیں آیا؟ ان اللہ ہو یہ کیوں نہیں کہا؟ کیوں رفیع ناصر صاحب سو گئے سی یا سن رہے ہو؟ جا گئے تو دسو ان اللہ کیوں پڑے گا؟ ان اللہ ہو کیوں نہیں پڑے گا؟ اللہ اللہ کر دیں تھی اتنے آ کے ان اللہ کا ہے، ان اللہ ہا کر چڑیا کی گل ہے؟ اس میں یقین کی بات کی جا رہی ہے کہ یقیناً اللہ، جو یقیناً ہو وہ کیا ہوتا ہے اس کو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نہیں یہ یقین چیزیں یہ عطا کرے گا. وہ تو ٹھیک ہے، پر زبر کیوں آ گئی ہے اس پہ؟ پیش کی بجائے اللہ لا الہ الا نہیں پڑھتے، اللہ، یہ سارے پیش سے چلتا کام. تو یہاں ان اللہ پڑھ دیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ خواتین بتائیں چلیں. ہاں ہاں انہوں نے منسوب کر دیے ہے، زبر نہیں لائی. نصب کی علامتیں بعض دفعہ زبر ہوتی ہے، بعض دفعہ زیر ہوتی ہے. زیر کی علامت میں نے آپ کو پہلے دکھا دی تھی، اب یہ نصب کی علامت آ گئی. ان لہم جناتن تھا نا، اس میں وہی انا ہے جس نے نصب کر دیا تھا جنات کو، اور جنات کی نصب زیر سے ظاہر ہوتی ہے، اور اکثر اسماء کی نصب زبر سے ظاہر ہوتی ہے. تو ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یستحیی ان یضرب مثلا، نہیں جھجکتا اس بات سے، نہیں شرماتا. عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے، لفظی ترجمہ تو وہی ہے، لیکن یہاں مراد ہے جھجکتا نہیں اس بات سے، بے خوف بلا تردد بیان فرماتا ہے. ان یضرب مثلا، ان کا مطلب ہے کہ، یضربا کہ وہ بیان فرمائے. ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں اور بیان کرنے کو بھی کہتے ہیں. ان یضربا کہ بیان فرمائے، مثلا کوئی مثال. مثلا کا مطلب کوئی مثال. اللہ تعالیٰ جو چاہے مثال بیان فرما سکتا ہے، اس کو جھجکتا نہیں، نہ اس کو جھجکنے کی ضرورت ہے. اور شرمانے کا ترجمہ کریں وہ بھی ٹھیک بیٹھتا ہے، اس میں پھر تھوڑا سا مضمون اور گہرا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہرگز اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی مثال ایسی بیان کرے ما بعوضتن، جیسے مچھر کی مثال ہو. ما بعوضتن کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس بات سے شرماتا نہیں کہ کوئی ایسی مثال بیان کرے ما بعوضتن جیسے مچھر. فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر. اب فوقہا سے مراد اوپر ہوتا ہے، لیکن یہاں نیچے مراد ہے، کیونکہ اگر نیچے کی طرف انگلی کریں تو اس سے آگے مراد ہے. فوقہ یہاں آگے کے معنی رکھتا ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر. تو اگر نیچے کی طرف بڑھ کر ہو تو پھر اور زیادہ نیچے ہو جاتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ تم مچھر کو ایک حقیر جانور سمجھتے ہو، ایک ذلیل سی چیز ہے. اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرنے سے بھی ہرگز نہ جھجکتا ہے نہ شرماتا ہے. فما فوقہا، اس سے بھی آگے چلے جاؤ، حقیر سے حقیر کیڑا بھی لے لو، اس کی مثال سے بھی اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ، پس وہ لوگ، اما میں نے پس وہ، الذین جو، آمنو ایمان لائے ہیں. پس وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں. ہمارے بہت سے لوگ جو عربی زیادہ پڑھتے ہیں یا بولتے ہیں، وہ اردو میں اکثر وہ جو ہیں یہ بات اس طرح کرتے ہیں، بس وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں، وہ جو ہیں وہ یوں کرتے ہیں. ہمارے کئی بزرگ علماء بھی جو اچھے عربی دان تھے ان کو عادت پڑ گئی تھی اس بات کی
بس وہ جو ہیں سو یوں ہیں. ان کی پرانی کیسٹیں سنیں آپ تو کثرت سے وہ ملے گا. وہ اما کا ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں اصل میں. اما کا لفظی ترجمہ ہے وہ جو ہے. تو فَأَمَّا الَّذِينَ پس وہ جو ہیں وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے, پس وہ لوگ جو ایمان لے آئے, یعلمون انہ الحق, وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا جس چیز کی بھی مثال بیان کرے وہ حق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. من ربہم, ان کے رب کی طرف سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جو ہیں جو کافر ہوئے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اما کا انگریزی میں ہے as far as those are concerned, اور as for those, دو محاورے ہیں انگریزی میں. اگر ایف او آر کے ساتھ آپ کریں گے تو کہیں گے as for those who they do this, اور اگر ایف اے آر کے ساتھ کریں گے تو یہ ہوگا as far as those are concerned they are like this and that. تو اما کا لفظ یہ وہی as for اور as far کے لیے, دونوں کے لیے برابر لفظ اما استعمال ہوتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, پس وہ لوگ جو کافر ہوئے, فَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں یا کہیں گے, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے اس مثال سے, بِهَذَا مسئلہ, اس بِهَذَا اس مثال سے, مسئلہ, یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کر دیتا ہے بہت لوگوں کو اور بہت لوگوں کو اس کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے. یہ جو لفظ فقرہ ہے بیچ کا, یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اس کے اور مسئلہ کے درمیان وقفہ ڈالا جاتا ہے, میم لکھی ہوتی ہے, یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ان کافروں کا فقرہ نہیں ہے بلکہ اللہ بیان فرما رہا ہے. ان کی بات یہاں ختم ہو گئی. فَيَقُولُونَ, وہ کہتے ہیں, مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ, اللہ نے کیا ارادہ کیا ہے, بِهَذَا مسئلہ, اس مثال کے بیان سے. یہاں ان کی بات ختم, اس لیے میم ہے کہ یہاں رک جاؤ. آگے اللہ کی بات شروع ہو گئی. یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, ارادہ یہ کیا ہے کہ وہ اسی مثال کے ذریعے کثیر تعداد میں لوگوں کی ہدایت کا بھی سامان کرے گا, گمراہی کا سامان بھی کرے گا اور ہدایت کا بھی سامان کرے گا. یہدی کا مطلب ہے ہدایت دیتا ہے, یُضِلُّ کا مطلب ہے گمراہ کرتا ہے. سورہ فاتحہ میں ضالین کا مطلب ہے گمراہ لوگ, تو وہی ضلالت, جب وہ فعل بنتی ہے تو بن جائے گی یُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, وہ گمراہ کر دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, اور کثرت کے ساتھ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, اور وَمَا يُضِلُّ, نہیں گمراہ کرتا اس کے ذریعے, إِلَّا الْفَاسِقِينَ, مگر ان لوگوں کو جو پہلے ہی فسق و فجور میں مبتلا ہیں, بدعمال لوگ ہیں. یہاں جب عام طور پر جماعت احمدیہ کے ترجموں میں گمراہ کرتا کی بجائے گمراہ ٹھہراتا ہے کا ترجمہ کیا جاتا ہے, اور یہ درست ہے, اور یہ آیت خود آخر پر اس ترجمے کی تصدیق کر رہی ہے. گمراہ کرتا ہوتا تو گمراہ ہونے کے بعد فاسق ہوتے لوگ. اللہ فرماتا ہے انہی کو گمراہ کرتا ہے, اگر کرنا کا لحاظ کریں گے, جو پہلے سے ہی گمراہ ہیں. تو پھر خدا نے کیا گمراہ کیا, اس لیے کرنا کی بجائے ٹھہرانا ترجمہ درست اور مناسب ہے. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, وہ گمراہ نہیں ٹھہراتا مگر ان کو جو فاسق لوگ ہیں. بس ٹھہرانا ترجمہ کوئی اپنی طرف سے زائد بات نہیں کی گئی, عین قرآن کے مفہوم کے مطابق قرآن کی طرز بیان کو قرآن سے سمجھ کر یہ ترجمہ کیا جاتا ہے. اب مچھر سے شرمانے کی کیا بات ہے, سمجھ آئی کسی کو؟
कि मच्छर से क्यों शर्माया अल्लाह ताला, और कहता नहीं शर्माना है, झिझकता नहीं, शर्माता नहीं। क्यों? ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, हाँ। गरीब चीज़ है। छोटी चीज मान भी जाओ फिर शर्माओ ना, ये तो फिर बड़े अफसोस की बात है। आप एक बुरी बात कहें और शर्माए ना, ये खूबी की बात तो नहीं है, हैं? बेशक, मतलब आप एक छोटी सी घटिया सी मिसाल दें और क्या मैंने नहीं शर्माना, ये खूबी की बात है, ये तो जिद हो गई। आम आदमी तो शर्मा जाता है छोटी बात करके, तो अल्लाह ने तो अखलाक सिखाए हैं इंसान को, वो क्यों कहता है कि मैं नहीं शर्माता? इसलिए कि अल्लाह फरमा रहा है कि छोटे से छोटे जानवर को भी अल्लाह ताला ने इतने कमालात अता किए हैं कि तुम बेवकूफ हो जो उनको छोटा समझ रहे हो। फमा फौकहा, उससे भी आगे निकलते चले जाओ, हैरत अंगेज कमालात इन छोटी छोटी मखलूकात में दिखाई देंगे। शर्माने की वजह नहीं है, ये मुराद है। अल्लाह नहीं शर्माता और बात छोटी करता है, ये तर्जमा गुस्ताखी का तर्जमा है। इसका तर्जमा ये कहना चाहिए अल्लाह शर्माने की कोई वजह नहीं पाता। इसलिए मैं कहता झिझकता नहीं बात बयान करने में। असल तर्जमा जो मुनासिब हाल है वही है, अल्लाह छोटी से छोटी मिसाल बयान करने में, मच्छर की हो या उससे भी छोटी हो, शर्माने की कोई वजह नहीं पाता। और इस आयत ने मुझे मच्छर की तहकीक पर लगा दिया एक दफ़ा, और मैंने जो साइंसदान थे ऐसे उनको भी कहा मुझे बताएं मच्छर के मुतालिक, और जो रसायल आते थे उनमें गौर से देखना शुरू किया। तो खुशकिस्मती से एक अमेरिकन साइंटिफिक रिसाले में मच्छर का जिक्र मिला, सारा वो आर्टिकल ही मच्छर पर था, और ऐसा हैरत अंगेज है कि अक्ल दंग होके स्टन हो जाता है इंसान। और दहरियों के खिलाफ मच्छर से बड़ी गवाही मुश्किल से मिलेगी, जिसको वो सबसे जलील चीज समझते हैं। हैरत अंगेज गवाही है अल्लाह ताला के हक में कि ये एवोल्यूशन से पैदा नहीं हुआ जानवर, बल्कि निहायत आला कारकर्दगी आगाजी से इसके अंदर दाखिल की गई है। इसका सोनार सिस्टम, मॉडर्न जो सोनार सिस्टम्स हैं वो मच्छर को अता हुए हैं। इसकी डबल ट्यूब इंजेक्शन की, और वो मादा जो खून को पिघला देता है ताकि सक करने में आसानी हो। आपने देखा है कभी जो ब्लड का नमूना लेते हैं डॉक्टर, उसमें एक चीज डालते हैं, उसको हिला देते हैं फिर, इसलिए कि वो क्लॉट ना कर जाए। और एंटी क्लॉट मादा भी मच्छर को अता हुआ है, और ये पहले वो लगाता है, जब इंजेक्ट करता है तो पहले वो थूकता है वो मादा थोड़ा सा, और जब वो सक करता है तो उस मादे से मिलकर फिर ये क्लॉट नहीं करता। और उसको जो चूसने के लिए अंदर ट्यूब है उसके एक, उसको हिफाजत से रखा हुआ है, एक बैरूनी ट्यूब है। फिर इसका सोनार सिस्टम है पूरा, और सोनार सिस्टम इतना नफीस और इतना हैरत अंगेज है कि ये, और फिर नाक इसकी हिस्स खुशबू की भी साथ, कि इसको ये पता चल जाता है कि ये बच्चे का खून है, यहाँ बच्चा सोया हुआ है, यहाँ बूढ़ा सोया हुआ है। और क्योंकि खून जब वो नरम जिल्द में हो और गुलाबी सा बच्चे का प्यारी सी जिल्द नरम नाजुक हो, तो आपको तो बू नहीं आती, माओ को भी उस खून की बू नहीं आती, मच्छर को आ जाती है। चुनाचे अगर बच्चा सोया हुआ हो और साथ कोई मोटी जिल्द का बड़ा आदमी, तो उसको नहीं काटेगा, बच्चे को काटेगा, क्योंकि उसको ये पता है कि नजदीक खून कहाँ मिल रहा है, और देख के नहीं कर रहा। ये घुप अंधेरा हो, बच्चा ऐन वही निशाने पे पहुंचेगा जहां इसको जल्दी नरम ताजा खून मिल जाए, और फिर आवाज टकरा कर जो वापस आती है उससे फासले का अंदाजा करता है अंधेरे में ही, और एग्जैक्ट ऐन निशाने पर पहुंचकर वहीं वो अपने दाखिल करता है अपने पहली सिरिंज। जब वो दाखिल हो जाती है फिर वो अंदर वो खून को पतला कर देती है, फिर वो नहायत लतीफ और बारीक सिरिंज उसके अंदर से नीचे उतारता है, उससे वो पतला हुआ वो खून के पेरोडीज का चूस लेता है। ये है, कौन शर्मा सकता है इसे बताएं? वो बहुत बेवकूफ होगा जो ऐसी आला तखलीक करे फिर शर्माए।
تو اللہ ताला ये कह रहा है कि मैं शर्माने की वजह नहीं पाता। जिसको तुम्हारी बेवकूफ़ आंखें काबिल शर्म चीज़ समझ रही हैं, अल्लाह ताला उसमें कोई भी शर्माने की वजह नहीं पाता। और मच्छर के मुतल्लिक तो और बहुत सी दिलचस्प बातें हैं, अगर वो सारी आप सुने और पढ़ें तो दंग रह जाएंगे बिल्कुल, यानी दंग से आगे बात निकल जाती है। वो इस वक्त चूँकि तफसीर का वक्त है, फिर कभी मौके पे आके तफसीर से बताऊंगा बातें। सिर्फ इतना है कि जो जितना मर्जी को जोर लगा ले मच्छर से बच नहीं सकता। अभी देखें मशहरियाँ लोग लगाते और लपेटते और कोशिश करते हैं किसी तरह मच्छर पे काबू ना आए, तो वो फिर भी पहुंच जाता है किसी तरीके से। दरवाजे के बाहर रोशनी में इंतजार करता रहता है। हम जब गए थे ना वहाँ कनाडा में, तो मैं कई दफ़ा बिजलियाँ बुझाई, लेकिन लोग गलती से जला देते हैं दरवाजे के ऊपर की बिजली। वहाँ इंतजार करता है, खुलते ही फौरन एकदम अंदर आ जाता है। कोई सूरत नहीं है सिवाय एक सूरत के। एक आदमी ने एक दफ़ा कार्टून बनाया था, उसमें उसने बताया था कि असल मच्छर से छुपने का क्या इलाज है। उसने बहुत एहतियात से मुशहरी उर्सी ये सारे खूब अच्छी तरह से देख लिया कि मच्छर जा भी सकता, तो आप चटाई के नीचे घुस के लेट गया। तो ऐसी होशियार चीज के ऊपर ये कहना कि शर्माता नहीं, वजह कोई नहीं शर्माने की, तो फख्र की वजह है। फमा फौकहा का मतलब है सिर्फ मच्छर ही नहीं, और भी बहुत सी इससे भी छोटी छोटी मखलूक़ात हैं। जितना तुम उन पर गौर करोगे तुम्हें हैरत अंगेज निज़ाम नजर आएगा और खुदा तआला की सन्नाई के अजीम कारनामे दिखाई देंगे। मा अराद अल्लाह बिहादा मसला। अब ये जो है, अब पता चला कि ऐसे मच्छर से बेवकूफ़ लोग ही गुमराह होंगे, जाहिल, और जिनमें कोई शऊर हो, जिनके दिल पाक हों, वो इससे गुमराह नहीं हो सकते। उनके अंदर तजस्सुस पैदा हो, गौर करेंगे कि क्या किस्सा है। अल्लज़ीना, यहाँ एक और बात याद रखें, बिहादा मसला युज़िल्लु बिही कसीरन, गुमराह पहले फरमाया है। आमतौर पर कुरान करीम का उसलूब है कि अच्छी बात पहले बयान करता है और बुरी बात को बाद में बयान करता है। लेकिन जहाँ बुरी बात पहले बयान हो वहाँ कोई करीना मौजूद होता है। यहाँ उन लोगों का कौल बयान हो रहा था जो इतराज़ कर, जो फासिक हैं खुद, तो पहले फिर उनका जिक्र कर दिया कि तुम कहते हो क्यों बयान करता है, इसलिए कि तुम्हारे जैसे बदबख्त जो है वो गुमराह हो जाएं। ये वजह है, क्योंकि तुम हो ही गुमराह, तुम पर मोहर लग जाए गुमराही की। आगे जब ये फरमाया वो यहदी बिही कसीरन, फिर फरमा दिया वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, फासिकीन के सिवा वो किसी को गुमराह नहीं ठहराता। ये नहीं कि किसी अच्छे भले आदमी को गुमराह कर दे और वो फासिक हो जाए। फासिकीन कौन है? मैंने कहा फिस्को फजूर व मुब्तला। कुरान करीम ने फिस्क की खुद तारीफ फरमाई है। अल्लज़ीना, वो लोग, यनकुज़ूना, नक़ज़ा मैंने तोड़ दिया, नक़ज़ अहद कहते हैं, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, उसने अहद का तोड़ना। यनकुज़ूना अहद अल्लाह है, वो अल्लाह का अहद तोड़ते हैं, मिन बाद मीसाक़िही, बाद इसके कि वो पुख्तगी के साथ बांधा गया। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही, और जिस बात को अल्लाह ने हुक्म फरमाया है उसे वो काट देते हैं। ये मिसाक को तोड़ने से मुराद वो मजहबी कौमें हैं जो इलाही मिसाक के ज़रिए, नबूवत के ज़रिए खुदा से एक मुआहदे के अंदर दाखिल हो गए, फिर उस मुआहदे की बेहुरमती की और तोड़कर उससे गर्दनें आज़ाद करा बैठी। ये है नक़्ज़ अहद। यहूद ने भी नक़्ज़ अहद किया, ईसाइयों ने भी नक़्ज़ अहद किया बहैसियत कौम के, और अहद पर कायम कौमों के अंदर इनफरादी नक़्ज़ अहद भी होते रहते हैं। तो अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहद अल्लाह है, वो लोग जो अल्लाह के अहद को तोड़ते हैं, मिन बाद मीसाक़िही, बाद इसके कि वो अहद पुख्तगी से बांधा गया। व यक़तऊना मा अमर अल्लाह बिही, और काट देते हैं उस चीज़ को जिसका अल्लाह ने हुक्म फरमाया। माँ मैंने जो, और अमरा मैंने हुक्म दिया, अल्लाह ने हुक्म दिया। अमर अल्लाह है, अमर अल्लाह नहीं है। क्यों नहीं है अमर अल्लाह?
बताएं, अमर अल्लाह क्यों है? हैं? इन्ना है वैसे पहले, इन्ना नहीं है इसलिए हो गया। जहाँ इन्ना नहीं होगा वहां जरूर रफा हो जाएगी। फाइली हालत, फाइली हालत किसको कहते हैं? जिसमें नहीं, जिसमें फाइल के माने पाई जाएं। जिसने कोई काम किया हो वो फाइल है, जिस पर काम हुआ वो मफूल है। तो इन्ना तो है नस्बी हालत। और वजह से यहाँ जो मजमून बयान हो रहा है, जो जुमला फेलिया, जिसमें एक फेल बयान हो, उसमें फेल के दो पहलू होते हैं। एक वो शख्स जो फेल करता है, एक वो शख्स जिस पर फेल वाक़या होता है। जैद ने बकर को मारा। जैद क्या है? फाइल। बकर क्या है? मफूल। जैद ने बकर को कत्ल किया। कातिल कौन है? जैद। इसलिए ने इलामत बन गई कातिल की, ने इलामत बन गई मारने वाले की, को इलामत है मफूल की। तो बकर पर फेल कत्ल हुआ, बकर पर मारने का फेल हुआ, तो उसके आगे हमने को उर्दू में डाल दिया। अरबी में रफा निशानी होती है फाइल की, और रफा बसा औकात पेश के जरिए जाहिर होती है, और नसब बसा औकात जबर के जरिए जाहिर होती है। क्योंकि इन्ना का लफ्ज नसब देता है, इसलिए इन्नल्लाह हमेशा आएगा। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। इन्नल्लाह पढ़ना मना है। अन्नल्लाह ताला हमेशा जबर आएगी उसके बाद, क्योंकि इन्ना ने नसब डाली थी, नसब की इलामत जबर है। और यहाँ अल्लाह फाइल है, और फाइल जो है वो उसकी इलामत रफा होती है, यानी फारा रफी हालत में होता है। अब आप देख लें फिर क्यों यहाँ आया है अल्लाह के ऊपर। यख्तऊना मा अमर अल्लाह, हुक्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया या किसी और ने? इसलिए किसी और को दिया। और अगर आप कहें मा अमर अल्लाह, क्या मतलब बन जाएगा? जो अल्लाह को हुक्म दिया, किसी और ने अल्लाह को हुक्म दिया। तो हा और हो से जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। एक जुमला दुरुस्त है और एक गुस्ताखी का जुमला है। अल्लाह को कौन हुक्म दे सकता है? इसलिए तलावत दुरुस्त पढ़नी जरूरी है। यानी गलती से बाज़ दफ़ा ज़ुबान लोग ठोकर खा जाती है, वो और बात है, लेकिन बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि तिलावत दुरुस्त हो, क्योंकि बाज़ जगह ज़ेर ज़बर बदलने से मज़मून ही ज़ेर ज़बर हो जाता है। वयख्तऊन मा अमर अल्लाह, और काट देते हैं। तो ये वक्त हो गया, अभी है कुछ चंद मिनट हैं। अच्छा जी। यख्तऊन मा अमर अल्लाह, और वो काट देते हैं उस चीज़ को जिसको अल्लाह ने दरअसल मिलाने का हुक्म दिया है, या अल्लाह के हुक्म को कता कर देते हैं। जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया उसको वो काट फेंकते हैं। अच्छा, आगे आ रहा है यख्तऊना मा अमर अल्लाह बिही अन युसला, वो जिस चीज़ का अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उसको मिलाया जाए, यानी रहमी रिश्ते हैं और आला अखलाकी ताल्लुकात हैं, अंबिया से मोहब्बत का रिश्ता, नेक लोगों से रिश्ता, ये सारी चीज़ें हैं मा अमर अल्लाह बिही अन युसला। वो कता करते हैं ऐत को किस तरह, उसकी एक मिसाल दे रहे हैं अल्लाह ताला कि जहाँ अल्लाह ताला फरमाता है आपस में मिलो, इकट्ठे हो, मोहब्बत का सलूक करो, हकूक अदा करो, वो उन सबको काट फेंकते हैं। आगे है वो युफ्सिदून फिल अर्ज़, और ज़मीन में फसाद करते फैलाते हैं। तो फासिक वो है जो अहद बांध कर तोड़ दे और खुसूसियत से बनी नए इंसान के लिए ख़तरा बन जाए, बजाय इसके कि इंसानी हकूक़ अदा करे वो इंसानी हकूक़ ग़स्ब करने वाला बन जाए, ताल्लुकात को मजबूत बनाने की बजाय ताल्लुकात को तोड़ने वाला बन जाए और ज़मीन में फसाद फैलाए। उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं, उलाइका
हुमुल खासिरून, यही घाटा खाने वाले होंगे। इस फसाद से इनको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। अल खासिर कहते हैं घाटा खाने वाला, अल खासिरून घाटा खाने वाले, और ये भी रफा की हालत है। घाटा खाने वाला खुद फाइल होता है, अपने घाटे का खुद जिम्मेदार होता है। तो उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग हैं जो घाटा खाने वाले हैं। कैफ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन, तुम अल्लाह का इनकार कर कैसे सकते हो? कैफ तकफुरून बिल्लाह, अल्लाह का, तुम अल्लाह का इनकार कर कैसे सकते हो? कुंतुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे, तुम्हें तो पता ही नहीं कि पहले क्या था। फ़अहयाकुम, किसी चीज ने तुम्हें जिंदा किया है, और मुर्दा खुद जिंदा नहीं हो सकता। तो जिंदगी को खालिक की इलामत के तौर पर पेश किया है, क्योंकि मौत खुद ब खुद जिंदगी में नहीं बदल सकती। जिंदगी मौत को जिंदगी में बदलती है। आप मुर्दा चीज़ों को जिंदगी में दाखिल करते हैं, वो जिंदा होती जाती हैं। अब एक बच्चा है, वो मुर्दा चीज़ें ही खाता है ना, हर चीज़ जो उसको मुंह पेट में जाती है वो पक शक के सब कुछ मुर्दा हालत में तब्दील हो चुकी होती है, और वो जिंदगी के अंदर दाखिल होकर जुज बनती जाती है जिंदगी का। लेकिन मुर्दा बच्चे के मुंह जितना मर्जी डाल लो, नामुमकिन है कि उसका वजूद उसको हजम करके उस मुर्दा चीज को जिंदगी में बदल दे। ये कानून है, ऐसा साइंटिफिक कानून जिसमें कोई तब्दीली नहीं। तो अल्लाह फरमाता है कि तुम कैफा तकफुरून बिल्लाह, तुम अल्लाह का इंतजार कर कैसे सकते हो इनकार। कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, तुम तो मुर्दा थे, और मुर्दा खुद जिंदा नहीं हो सकता। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा फरमाया। सुम्मा युमीतुकुम, याद रखना फिर भी मारेगा, जिंदगी हमेशा की नहीं है। सुम्मा युहयिकुम, फिर जिंदा कर देगा। तो जिस तरह पहली जिंदगी में कोई शक ही नहीं है, और मुर्दनी से हालत पैदा हुई थी जिंदगी की, तो आइंदा में कैसा शक कर सकते हो? अब ये अजीब तर्ज कलाम है कि पहली मौत से जिंदगी खुदा की हस्ती की दलील, और जब खुदा की हस्ती की दलील कायम हो गई तो मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर शक बेवकूफ़ों वाली बात रह गई, उस पर भी यकीन आ गया। तो पहली दफ़ा अल्लाह के यकीन के लिए दलील बांधी है, दूसरी दफ़ा बास बादुल मौत पर यकीन के लिए उसी दलील को कायम कर दिया। और देखें, कैफा तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम, अल्लाह का तुम कैसे इनकार कर सकते हो जबकि तुम मुर्दा थे। फ़अहयाकुम, उसने तुम्हें जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मारेगा। सुम्मा युहयिकुम, फिर वो तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा। यानी खुदा चूंकि जिंदगी का जरिया है, जब वो साबित हो गया तो आइंदा की जिंदगी भी यकीनी हो गई। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, फिर तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, लौट कर तुम्हें बाहर उस तरफ जाना है। हुवल्लज़ी, ये रुकू खत्म कर लीजिए जल्दी से। हुवल्लज़ी खलक़ लकुम, वही है जो जिसने खलक़ लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया, मा फिल अर्ज़, जो कुछ भी है जमीन में, जमिया, सब का सब। अब सब का सब तो बज़ाहिर आपके लिए पैदा नहीं हुआ, कीड़े मकोड़े हैं बेशुमार, डायनासोर और कई मखलूक़ात थीं, लेकिन अमर वाक़या ये है कि ये सारे मरकर इंसान के फ़ायदे की चीज़ों में बदल जाते हैं। तमाम जानवर, तमाम दरख्त, जो कुछ भी ज़फ़र हुए, या वो कोयला बन गया या वो तेल बन गया, तो किसके लिए पैदा किए गए, किसके लिए मरे? इंसान के लिए, और तो किसी ने फ़ायदा ना उठाया। तो कायनात की हर चीज़ अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारे लिए पैदा की है, पर जिसकी इतनी खातर की गई वो जिम्मेदार भी है, उसे जवाब तलबियाँ भी होंगी। जिनको किसी की खातर पैदा की वो बेचारे क्या जवाब तलबी, उनकी जवाब तलबी कैसे होगी? वो तो काम आ गया खुद किसी के। जिसकी खातिर ये सारे नखरे हुए हैं उससे पूछा भी जाएगा। सुम्मा इस्तवा इला समाए फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, फिर वो
आसमान पर करार पकड़ गया। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और उसने उसे 7 आसमानों में दुरुस्त फरमा दिया। वह हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वह हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। यहाँ सवालात उठेंगे, बाद में फिर मौका मिलेगा तो जवाब दूंगा कि ज़मीन तो आसमान बनने के बाद पैदा हुई है, और यहाँ फरमाया है कि पहले ज़मीन मुकम्मल कर ली, फिर 7 आसमान दुरुस्त किए। इससे क्या मुराद है? वक्त ख़त्म हो गया, बाकी फिर इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आइंदा कब क्लास होगी?